of the process is the only to execute each and every task available for the execution. So no need to do any more efforts, but no need to do any more efforts, but it has to execute each and every process which are available over the states. States means ready होए, run होए, block और suspend के हर एक स्टेट के अंदर उसको एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा. Okay, let us move towards the similar things comes for the two state process model. Okay, here one more thing happens. We'll see gradually into the next slide that what happens if we have number of suspend states. Okay, suspend states mean that if we have more than one process available for the execution and waiting for the execution as well. So here is what it occurs more number of process time. So someone can mark this event occurs. Okay, event occurs and event occurs, that means more than one process whichever is blocked or a suspend or a block. Okay, so any one of these any one of these a process may start executing at the same time. Okay, so the difference is what happens over here in a spool. Okay, in a spool two process starts executing at the same time. That the two process wants to access shared memory at same time. Okay, so here we have a process A and process B, both wishes to execute in to a running state. But here what happens, here what happens. Okay, અહીંયા આપણે यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूशन में एक्टिवेट होने के बाद वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है. ओके, दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है. तो इसमें क्या होगा, कोई बताएगा? सर कोई एक जाएगी रनिंग में. एग्जीक्यूट एग्जैक्टली. ओके, 25 नंबर. और एनीबडी एल्स? Anybody else is there who can share? Yes. $19. Yes, 60. Jatin, 10 number. 11. 17. Yes, sir. Yes. What happens if more than two process starts activating at the same time? मतलब यहाँ पर दोनों प्रोसेस, एक सस्पेंड स्टेट में है और एक ब्लॉक स्टेट में है, और दोनों प्रोसेस एक ही साथ एग्जीक्यूशन में जा रही है, तो किसकी बारी पहली आएगी? I think sir blocked state की पहले आएगी. Okay, fine. Okay, so actually what happens over here, so whenever such kind of issue arises, okay, issue means such kind of the execution arise where the two processes wants to access shared memory at same time, means wish to execute at the same time, then what happens, it finds that whatever the processor, again it finds
that which one is having the proper parameter and the the more number of suspend state means जिसका टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन किसका ज्यादा है और किसके साथ उसके पैरामीटर्स अवेलेबल है। अगर पैरामीटर प्रोसेस बी के पास अवेलेबल है, okay, then it will move towards the execution and next will go for A. So, okay, so this is how the execution occurs. The situation where the two process starts executing at the same time to use shared memory, such is known as critical region. Such area is known as critical region, and the activity is known as race condition. Okay, so the four condition to provide the mutual. Okay, okay, am I getting? So what happens over here? Let us move towards the last earlier PPTs. Here it is. So here what happens? Ready. The processes are ready. Okay. Here also the processes are ready. Here also the block or suspend state is ready. Now what happens at some important time? The suspend state may start executing and such activity is known as race condition. जैसे let me show you over the dark region, that is okay, so this region, okay, this region, okay, आज रीजन जे छे ये जो पूरा जो इतना वर्चुअली है, इट इज नॉट एन एक्चुअल बट इट इज अ वर्चुअल रीजन where two number of process, first process which is blocked and another process which is in under suspend state, दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। ओके, सो सच कंडीशन इज नोन एज रेस कंडीशन। सो क्या कहेंगे उसको, जैसे ये यहाँ पर जा रहा है and the same time one more process is moving towards the ready state, such is known as such condition is known as race condition। क्या कहेंगे उसको, रेस कंडीशन कहेंगे। जैसे ये जो है ये और दोनों प्रोसेस को हम कहेंगे, जो एक्टिविटी है उसको कहेंगे रेस कंडीशन। रेस कंडीशन मींस दो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा और बोथ विल स्टक ओवर हियर, सो बिकॉज ऑफ क्रिटिकल रीजन, सो इसे हम कहेंगे क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो जैसे दो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूशन हुई दैट इज अ रेस कंडीशन, और दोनों प्रोसेस एक साथ यहाँ क्रिटिकल रीजन पर आकर रुक गई। ठीक है, तो रुक गई तो क्या होगा, एट द क्रिटिकल रीजन बोथ द प्रोसेस विल बी अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन बट विल हैव टू एलिमिनेट सिंगल प्रोसेस and other process to be proceed for the execution। so यहाँ पर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में इंसर्ट करना है और दूसरे को फिर से ब्लॉक स्टेट में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हमारे पास एल्गोरिदम है, उसके लिए हमारे पास एक आइडिया है। क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें एक एग्जीक्यूशन ज्यादा करेंगे, मतलब एक जो प्रोग्राम है जिसे हम कहेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके, सो जिसे हम कहेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो अगर वो क्रिटिकल रीजन में से दो में से या मोर देन वन प्रोसेस विल हैव टू process only single process or we'll have to insert single process for execution, so what we'll have to do, we'll have to
we'll have to find, we'll have to make a mutual exclusion. Mutual exclusion means either first or second. ओके, दोनों में से कोई भी एक ही प्रोसेस है जो एग्जीक्यूशन में जानी चाहिए. सो हियर देयर आर सम कंडीशंस टू प्रोवाइड a mutual exclusion, that no two process simultaneously in the critical region. ठीक है, so no assumption made without about speed or a number of CPUs. Okay, no process running outside its critical region may block another process. और लास्ट वन है, नो प्रोसेस मस्ट वेट forever to enter its critical region. मतलब इसके अंदर चार कंडीशन हुई. एक तो दो प्रोसेस क्रिटिकल रीजन तक पहुंचनी नहीं चाहिए. अगर पहुंच गई तो क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन से एक को एलिमिनेट किया जाएगा और दूसरी को इंसर्ट किया जाएगा. नंबर 2, नो assumption मेड अबाउट स्पीड और नंबर ऑफ सीपीयूज. मतलब स्पीड कितनी, मतलब what type of CPU it has. ठीक है, जैसे एक प्रोसेस है तो उसके साथ उसके नंबर ऑफ, जैसे वी हैव सीन इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. So each and every process has its the format. Okay, so in that format it has the CPU speed for execution and what number of thread does it has. So agar without knowing we won't be able to eliminate it as well. अगर कोई भी है और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको इंसर्ट किया ही जाएगा. ओके, और दूसरा क्या है कि नो एनी प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस को फॉर एवर उसको क्रिटिकल रीजन में रहने की जरूरत नहीं है. जैसी एग्जीक्यूशन होगा तो वैसे वो इंसर्ट हो जाएगा और बाकी की एलिमिनेट हो जाएगा. अगर ये हुआ, प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है, दोनों प्रोसेस तो क्रिटिकल रीजन के पास अगर खड़े रह गए उसके रेस कंडीशन थ्रू, अगर रेस कंडीशन थ्रू क्रिटिकल रीजन में आ गए तो उसमें से एक को निकालना है. ठीक है, तो अभी क्या होगा कि दोनों में से दोनों प्रोसेस या एनी वन अमॉन्ग्स टू प्रोसेस, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में ही जाएगा. ऐसा नहीं कि क्रिटिकल रीजन आकर क्रिटिकल रीजन के पास आकर वो स्टक हो जाएगा, नहीं वो कि हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं. एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना ही करना है. ओके, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए जैसे यहाँ पर नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड इट्स क्रिटिकल रीजन मे ब्लॉक अनदर प्रोसेस. मतलब हर एक क्रिटिकल रीजन तक पहुंचने वाली हर एक प्रोसेस को इसको एग्जीक्यूशन देना ही देना पड़ेगा. और कोई भी प्रोसेस जो है ओके क्रिटिकल रीजन में उसको वेट नहीं करवाना है. अगर क्रिटिकल रीजन में पहुंचने वाली प्रोसेस को अगर हम वेट कंडीशन में डालेंगे या तो उसको वेट करवाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, so what happens, the regular जो स्पेस है रेगुलर प्रोसेसिंग है, it will affect वो क्रिटिकल रीजन जो सस्पेंड स्टेट वाली जो प्रोसेस है उसको, और जो रेगुलर नई जनरेट हो रही प्रोसेस है उसको भी वो अफेक्ट करेगा. सो द इश्यू इज वेरी 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 क्लियर टू एलिमिनेट more number of process, that is through mutual exclusion. Now how the mutual exclusion does, let us see the process A and process B both are having. Now A enters a critical region and A leaves critical region. Okay, जैसे मतलब प्रोसेस ओ ए क्रिटिकल रीजन तक आ गया तो अभी क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूजिंग द क्रिटिकल रीजन में क्या होगा, the B attempts to enter the critical region. अभी जब तक प्रोसेस ए एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता, प्रोसेस बी उसका प्रोसेस जो बी है, ठीक है, वो अटेम्प्ट करेगा लेकिन विल नॉट सक्सीड फॉर एग्जीक्यूशन. as soon as a critical region पर प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, ओके, तभी प्रोसेस बी को क्रिटिकल रीजन में एग्जीक्यूशन मिलेगा. सो फॉर इवेंचुअली दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ गए तभी क्या होगा, दोनों में से एक को क्रिटिकल रीजन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन थ्रू मिल गया. ठीक है, सो अभी क्या होगा, ए एंटर्स क्रिटिकल रीजन. जैसे हमने सपोजिशन ले लिया कि प्रोसेस ए को क्रिटिकल रीजन में एंटर कर लिया, तो अभी
with the help of race condition and mutual exclusion, A gets priority and B lags behind. So as critical region execution में गया वैसे और उसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, जैसे ही खत्म होगा प्रोसेस बी का एग्जीक्यूशन शुरू होगा और प्रोसेस एग्जीक्यूशन लीव होगा. So at the time t1 interval, its execution starts process A, and for the t equal to 3 where execution in between process B will attempt to enter the critical region but will not get success because of process A is still under execution. So अगर execution में है तो उसको फिर से ब्लॉक स्टेट में डाला जाएगा and will trigger process B for execution at time 3 where the process A gets finished its execution. So उसका जैसे execution खत्म होगा process B का execution शुरू होगा. So this is how the critical region works for each and every process which are in block state. जो block state में है उसके ही लिए क्रिटिकल रीजन फॉलो करेगा. ठीक है, हर एक प्रोसेस के लिए नहीं करेगा. जो ब्लॉक है या सस्पेंड स्टेट में है उसके लिए क्रिटिकल रीजन काम का है. जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके लिए क्रिटिकल रीजन काम का नहीं है बिकॉज अभी वो ब्लॉक स्टेट में नहीं गई है, सस्पेंड स्टेट में नहीं गई है. ओके, it is not been preempted by other kernel process or other priority of a process, so it will continue for the execution the newer process and then it will allow the block state or suspend state process. So this is how the algorithm is working for the execution. Okay, so propose a solution for the critical region. So that is turn 0 for the loop, for the critical region turn 1. Okay, the non-critical region, and it will continue for which is not having 1, so it will eliminate as well. So process 0 and process A, the process 0 will execute into the process and into the processor and either process B or process 1. Okay, B, that is process 1 will wait for having the execution. So such kind of activity is known as critical region and mutual exclusion. Okay, so today we saw three things. Number one is race condition. Okay, race condition. Then we saw आगे शायद हमने लिखा है. This is what the race condition. Then we learn some about the critical region and the mutual exclusion. Okay, so these three are very important with respect to the your interviews as well as your paper. We may ask you to give a short note on critical region or mutual exclusion. Okay, so let us go for the threads, a very new and very fine topic of an operating system and part of process. Okay, so till date we are talking about the process. Okay, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि प्रोसेस में ये है, प्रोसेस में वो है, प्रोसेस. ठीक है, अभी क्या है, एक प्रोसेस है. ठीक है, वी हैव अ प्रोसेस. ओके, अब प्रोसेसर के प्रोसेस में क्या है, what we have a process we have a set of programs or set of instructions to be executed over the processor के अंदर अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करनी है तो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसके बेस के ऊपर प्रोसेसर वर्क करेगा. ठीक है, अभी सोचो एक प्रोसेस है और एक प्रोसेसर है. ओके, एक प्रोसेसर आया, प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया और उसको आउट कर दिया. ठीक है, दूसरी प्रोसेस आई, उसको एग्जीक्यूशन में डाल किया और एग्जीक्यूट हो गया.
थर्ड प्रोसेस आई, प्रोसेसर में डाला, प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और प्रोसेस को कंप्लीट किया. So likewise, number of process comes and one by one each and every process goes for the execution and gets completed its execution. So what happens over here? एक ही प्रोसेस है, एक या नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, हर एक बार एक प्रोसेसर में जाएगा और एग्जीक्यूशन होगा. So the time taken for execution for each and every process at the processor will increase. समझ में आया? क्या होगा? एक 5 या 10 प्रोसेस है और एक ही प्रोसेसर है, और एक ही प्रोसेसर के पास क्या होगा, नंबर 10 प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूट करनी है. ठीक है, तो क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन वन बाय वन एग्जीक्यूशन में जाएगा. ठीक है, इट इज सिमिलर टू हैव एन एग्जांपल लाइक व्हाट, like a shopkeeper. Okay, if you move towards a shopkeeper, okay, shopkeeper ની પણ સારામાં સારો એક્ઝામ્પલ કયો રહેશે? ફોર એક્ઝામ્પલ કોનું નામ લઉં? Okay, Darshil is there. So for example, Darshil there na, Darshil કે જેમ કે મોલમાં તમે જાઓ, ओके, हिंदी में एक्सप्लेन करूँ. जैसे आप मॉल में जाएंगे, मॉल में जाकर फेस्टिवल के दिनों के अंदर या हैवी डिस्काउंट के टाइम के ऊपर जो बिलिंग काउंटर है उसके ऊपर भीड़ ज्यादा रहेगी. ठीक है, अभी भीड़ ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ फेलोज टू मेक अ बिल इज मोर देन वन. यस, ओके, ठीक है. तो अभी क्या होगा, जो एक बंदा है, ठीक है, जो बिलिंग कर रहा है, ओके, डेफिनेटली विल हैव एन ओवरहेड, मतलब उसका काम बढ़ जाएगा. यस के नो? Yes, Yes. sir. ठीक है, नाउ यू लुक, नंबर ऑफ फेलोज हु आर वेटिंग टू गेट बिल्ड. ओके, नंबर ऑफ फेलोज हु गेट बिल्ड एट द काउंटर, वो सारे क्या है, वो सारी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं. ओके, जैसे 10 लोग खड़े हैं तो 10 क्या है, हमारे पास 10 प्रोसेसेस वेटिंग में है, एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही है, कब हमारी बारी आए और कब हमारा एग्जीक्यूशन हो. ठीक है, इधर साइड जो बंदा बिल कर रहा है वो क्या है, हमारा प्रोसेसर है. सो जैसे ही वन बाय वन एग्जीक्यूशन में आएगा, हर एक की जो जो टर्न आएगा उसी हिसाब से वो प्रोसेसर उसकी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, बिलिंग करेगा, और एग्जीक्यूशन करने के बाद वो चला जाएगा. समझ में आया? ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अभी ये सिचुएशन में क्या होगा कि 10 लोग खड़े हैं, एक बंदा प्रोसेसर है, मतलब 10 प्रोसेस है, एक प्रोसेसर है, हर एक प्रोसेस आएगी, एग्जीक्यूट होने के बाद वो एग्जिट ले लेगी. नाउ व्हाट हैपेंस, तो अभी प्रोसेसर के ऊपर ओवरहेड है कि भाई 10 प्रोसेस है और नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ फेलोज आर इंक्रीजिंग वन बाय वन. सो प्रोसेसर के ऊपर एक लोड रहेगा कि नहीं, इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, अभी इस सिचुएशन में अच्छा सा क्या होगा कि एक बंदा जो प्रोसेसर है और मिल कर रहा है, मीन्स एग्जीक्यूशन में है, उसके अलावा और 10 लोग वही काम कर रहे हैं. ठीक है, सो एक बिलिंग काउंटर है, उसकी जगह पर 10 बिलिंग काउंटर लगा दिया तो क्या होगा, ओवरहेड कम हो जाएगा. ओवरहेड कम हो जाएगा. मतलब 10 प्रोसेस जो लाइनअप में है वो हर एक को एक प्रोसेसर मिल जाएगा. है ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्या होगा, एक ही मिनट में सबका बिलिंग हो जाएगा.
सो किसी भी प्रोसेस को वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एक अभी गौर से सुनिए, ट्विस्ट यहाँ पर है कि हमारे पास 10 प्रोसेसर तो कंप्यूटर सिस्टम में रहेंगे नहीं, हमारे पास तो एक ही प्रोसेसर रहता है। तो अभी सिचुएशन में क्या है कि भाई जो प्रोसेसर है, ठीक है, वो एक ही रहे। जैसे बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग मतलब जो मॉल है वो एक ही है। ठीक है, अभी काउंटर्स अलग अलग है, लेकिन बिलिंग जो सॉफ्टवेयर है वो एक ही है। सो जहां पर सारी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपलोड होंगी, उसका प्राइस टैग होगा, प्राइस नोटिफाई करने के बाद उसको एक बिल दिया जाएगा। तो वो जो बिल है वो 10 काउंटर में अलग अलग बंदे जो खड़े हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है उसके बिलिंग सॉफ्टवेयर में। समझ में आया? यस सर। है ना? तो 10 लोग हैं, 10 प्रोसेस है, वो हर उन सारी प्रोसेसिंग का एग्जीक्यूशन हो रहा है सर्वर पर। ठीक है, दैट इज प्रोसेसर के अंदर, बट विद द हेल्प ऑफ अ बिलिंग काउंटर में जो बंदा बिलिंग कर रहा है उसके थ्रू हो रहा है। सो दैट मीन्स जो जो फेलो हु इज डूइंग द प्रोसेस, okay, so they are a part of a billing process, billing software। ठीक है, सो बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर 10 बंदे हैं, 10 बंदे खुद 10 अलग अलग प्रोसेसिंग का एग्जीक्यूशन करने के लिए लाइन अप है। तो क्या होगा, these fellows are known as threads, okay, because they are a part of a billing process। जो बंदे बिल के लिए सारी आइटम्स जो हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। सो हियर आल्सो द सेम सिनेरियो occurs। प्रोसेसर एक है, लेकिन प्रोसेसर के अंदर हमने क्या किया, नंबर ऑफ थ्रेड्स अलग अलग रख दी, मींस अ लाइट वेट प्रोसेस कर ली। ओके, सो जो प्रोसेसर है उसका काम कम करने के लिए पूरे पूरे प्रोसेस को हमने एक डिवीजन कर दिया। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया। और हर एक मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है तो मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस को, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम को हर ईच एंड एवरी प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 10 प्रोसेस है तो 10 प्रोग्राम के अंदर हमने उसको एलोकेट कर दिया। तो हर एक प्रोसेस आएगी, हर एक उसको प्रोग्राम लेकर एग्जीक्यूशन में जाएगी। सच इज नोन एज थ्रेड्स। ओके, थ्रेड, thread to nahi, thread। Okay, so it is known as thread। So number of process starts executing at the same time in a single processor is known as a thread। So thread is also known as a lightweight process। Okay, consider having the multiple, see here, the process has a single thread of execution। ओके, एक प्रोसेस एक प्रोसेस है तो एक प्रोग्राम रन करे, पर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स હોય તો મલ્ટીપલ નંબર ઓફ એક્ઝિક્યુશન થાય। સો મલ્ટીપલ નંબર ઓફ પ્રોસેસ ને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે મલ્ટીપલ નંબર ઓફ પ્રોગ્રામ્સ હોય, ક્યાં હોય, પ્રોસેસર ની અંદર હોય। સો મલ્ટી પ્રોસેસર સિસ્ટમ એક્ઝિક્યુશન માં આવે। ઓકે, સો હિયર consider having a multiple program counter as a process, and multiple location can execute at once, means अलग अलग प्रोसेसर में अंदर अलग अलग एग्जीक्यूशन થાય। so multiple threads of control occurs। so must then have a storage of thread details and multiple program counter in PCB। એટલે PCB ની અંદર જેટલી બી નંબર ઓફ PCB છે એટલા બી નંબર ઓફ પ્રોસેસ છે, જેટલા બી નંબર ઓફ પ્રોસેસ હોય એટલા એના એક્ઝિક્યુશન fast થાય। okay, so this is how the threads are known। so into, so this is what we have a thread models। these are the models of thread। so tomorrow we will see, the next lecture we will see about the detailed study of threads and its benefits, disadvantage। okay,